लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Kaushik Rai with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं लेकर चुनाव से संबंधित ताजा खबरें। हमारे स्टूडियो में हम आमंत्रित करते हैं राजनीतिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषकों को ताजा समाचारों पर चर्चा के लिए। उसके अलावा हम आपको लिए चलते हैं ताजा जानकारियों के लिए सीधे क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय समाचार एकांश के सौजन्य से, और देते हैं आपको हर पल ताजा दिन भर की घटनाओं के बारे में जागरूक करने वाली जानकारियां। आइए आरंभ में परिचय कराते हैं आपका अपने विश्लेषक से, जो हमारे साथ आज आमंत्रित हैं, संतोष कुमार। संतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। And now the headlines. Election Commission issues notification for third phase of Lok Sabha polls, reviews preparedness for first phase elections. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi addresses rally in Udhampur, expresses confidence on legislative elections and restoring statehood of Jammu and Kashmir. In Maharashtra, Vanchit Bahujan Aghadi announces fifth list of 10 candidates. लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना हुई जारी। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में रैली को किया संबोधित। कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, राज्य का दर्जा बहाल करने पर भी जताया भरोसा। और महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी ने 10 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 संसदीय सीटों के लिए चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में बैतूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार की मृत्यु के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। तीसरे चरण के लिए इस महीने की 19 तारीख तक नामांकन किए जा सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। The Election Commission today reviewed preparedness for first phase of Lok Sabha polls. The Commission interacted with over 350 election observers across the country. 102 parliamentary constituencies in 21 states and union territories will go to polls on the 19th of this month. The poll body has deployed 127 general, 67 police and 167 expenditure observers to ensure free and fair voting in this phase. The Election Commission has initiated home voting facility for the elderly and people with disabilities for the upcoming Lok Sabha elections. Under this initiative, voters over 85 years of age and persons with disabilities with 40% benchmark disability can avail the optional home voting facility. The Election Commission today said that the voters in this category have already begun casting their votes for phases 1st and 2nd of the polling. It added that voters who availed the home voting facility in the first phase have expressed gratitude and satisfaction. In a major relief to Kashmiri migrant voters, the Election Commission (ECI) has abolished the procedure of Form M for migrants residing at Jammu and Udhampur. The Form M is used by the migrant electors of Kashmir to cast votes from any one special polling station of Delhi, Jammu and Udhampur. The ECI announced in a notice that for migrants residing outside, however, the Form M will continue but with self-attestation instead of gazetted officer's certificate. The ECI further notified that special polling stations will be set up at all the migrant zones in Jammu and Udhampur. The Commission said that it took the decision after receiving requests from several Kashmiri migrant groups to discuss their difficulties while filing Form M in every election. ये थी निर्वाचन आयोग से संबंधित खबरें, और आइए चलते हैं, आरंभ करते हैं चुनावी रैलियों से संबंधित खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह दशकों के बाद पहला चुनाव है जिसमें अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी और सीमा पार से गोलीबारी चुनावी मुद्दे नहीं हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहले माता वैष्णो देवी की यात्रा या श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा
चिंता का विषय हुआ करती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है और लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और इसे राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी दल संविधान के नाम पर झूठ का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जा सकता। बाड़मेर में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव किया और आज संविधान के नाम पर झूठ बोल रही है। Congress leader Rahul Gandhi has said that the NDA government is centering only around certain rich industrialists who are given contracts in all sectors. In a public meeting at Tirunelveli today, he canvassed for the candidates at the southern part of Tamil Nadu. Rahul blamed BJP for threatening the opposition parties by deploying the ED, CBI and IT. He said that Congress has been targeted and its bank accounts freezed for reasons unknown just before the elections. He said that unemployment has become a major challenge over the past 10 years when the BJP government decided not to attend the issue. महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी VBA ने लोकसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की 5वीं सूची की घोषणा कर दी है। VBA की प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर ने कल उम्मीदवारों के नाम जारी किए। पार्टी ने उत्तरी मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया है। Senior BJP leader and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the party always respected and gave importance to women. Campaigning for the candidates at Chidambaram this afternoon, she alleged that the DMK and its alliance partners are corrupt and selfish. Ms. Sitharaman said that people know how to choose a party which has a vision to develop the country. And in the studios today, we have senior political analyst Santosh Kumar. Santosh ji, the notification for the third phase of the Lok Sabha polls 2024 has been issued by the Election Commission, and we are just about 5 days away from the first phase of voting that is to take place on the 19th of April. Your comments? देखिए, अभी 19 अप्रैल को जो पहले फेज का चुनाव है उसमें 102 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं। उसकी तैयारियां आपने बताया कि पूरी हो चुकी है। थर्ड फेज का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसका चुनाव 7 मई को होगा और उसमें 94 सीटें हैं, 12 राज्यों की हैं। और इसमें आप देखेंगे तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बीजेपी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो गुजरात एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है इस मामले में, और कर्नाटका में भी 14 सीटों पे चुनाव है। इसी तरीके से करीबन जो 12 राज्य हैं उसमें ये चुनाव संपन्न होंगे। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो हर राज्य में अलग अलग मुद्दा है, लेकिन एक इस बार के चुनाव को अगर हम देखें तो मैंने ये देखा है, कुछ कमेंट्स विपक्षियों के भी कमेंट्स देखे हैं और सत्ताधारी कमेंट्स भी देखे हैं। विपक्ष भी कह रहा है कि ये इस बार का चुनाव कुछ अलग और अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। निश्चित तौर से ये देश का जो चुनाव है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अपने आप में हम आम चुनाव तो कहते हैं इसको, लेकिन ये विशेष चुनाव है क्योंकि लगभग 97 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करने, मतलब पहली बार हिस्सा, मतलब ये इस चुनाव में वोट डालेंगे। और दुनिया का मतलब कहूँ तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज इस बार होने जा रही है। और चुनाव आयोग की तैयारी की बात अगर मैं कहूँ तो वाकई तैयारी इतनी स्ट्रांग है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे जानकार हैं, मैंने उनको देखा बात करते हुए कि जैसे आपने भी कहा ना जम्मू कश्मीर में माइग्रेंट्स के लिए फॉर्म की बात, अब वो बड़े अधिकारी हैं लेकिन उनका एक बच्चा है जो फर्स्ट टाइम वोटर है और वो डिसेबल है। तो चुनाव आयोग का एक व्यक्ति वहां फॉर्म लेके पहुंचा, जो 12D फॉर्म की हम बात करते हैं जो डिसेबल्स के लिए दिए जाने हैं, तो फॉर्म लेके उनके घर पहुंचा, उनको बताया, पूछा कि भाई ये डिसेबिलिटी किस तरह की है, क्या वो बूथ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। फिर उनको फ़ोन किया गया उनके घर से फिर कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर उनसे बात हुई। तो ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग कितनी मुस्तैद है इस बार चुनाव को लेकर के, और चुनाव का परसेंटेज बढ़े, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़े। और पिछली बार का जो रिकॉर्ड है, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड था, लगभग 67 पॉइंट समथिंग वोट परसेंटेज रहा था, जो अब तक का सर्वाधिक है आज़ादी के बाद का,
उस ट्रेंड को आगे बढ़ाने की कोशिश चुनाव आयोग की ओर से है। बिल्कुल, यहाँ पर ये समझना चाहिए कि चुनाव आयोग की जो कह लें विशेष व्यवस्थाएं, कुछ की ओर आपने इशारा किया, कुछ की ओर हम भी आपसे समझना चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए व्यवस्था की गई है, यानी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन क्या इस बार भी, जैसा कि आपने कहा कि तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो एक उदासीनता मतदाताओं में देखी जाती है, और खासतौर से युवाओं में भी, कुछ युवा जो सेलिब्रिटी हैं वो तो आते हैं, लेकिन जो आम युवा हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी? क्या मुद्दे कोई ऐसे उठ के आ सकेंगे जो युवाओं को आकर्षित करेंगे वोट डालने के लिए? निश्चित तौर से देखिए, इस बार का जो चुनाव है अपने आप में, मैंने जैसे पहले कहा ना, एक विशिष्ट चुनाव है, विशेष चुनाव है। और सब तरह से मैं अगर कहूं तो देश का ये पहला चुनाव होगा जो मनोवैज्ञानिक आधार पर लड़ा जा रहा है। पहला चुनाव है इस तरीके का। अभी तक का अगर 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक स्तर पे चीजें हो रही हैं और पूरी कोशिश है, चुनाव आयोग की कोशिश तो है ही कि जितनी संख्या में, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिला हों, या फिर युवा हों, या दिव्यांग हों, या फिर जितने भी वोटर क्लास है, वो उन सबको हम वोट में शामिल करें, उसकी पूरी तैयारी तो है। और आपने इस बार देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक सहारा लिया गया है, बहुत अधिक सहारा लिया गया है टेक्नोलॉजी का। हर चीज के लिए अलग अलग ऐप्स बने हुए हैं और सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं जी। जो iOS प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी अवेलेबल हैं, गूगल प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हैं जी। और वहां से सारी जानकारी लोगों को उपलब्ध हो रही है। जिस उदासीनता की आप जो बात कर रहे हैं, वो उदासीनता आप तब कह सकते हैं जब वोटिंग टर्नआउट उस तरीके से नहीं दिखेगा जी। क्योंकि अभी के समय हम इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी पे आधारित है और लोग घर, जहां ऑफिस में हों या घर में बैठे हों, वहां से सारी एक्टिविटीज, सारी चीजों को देख रहे हैं। तो अभी मैं उदासीनता तो नहीं कहूंगा कि उदासीनता दिख रही है, ये वोटिंग टर्नआउट जो दिखेगा उसके आधार पर चीजें तय होंगी। यहाँ पर एक दूसरा सवाल, अब चुनावी रैलियों पर चर्चा करना शुरू करना चाहेंगे और सीधे जम्मू कश्मीर आपको लिए चले। Our correspondent Durgesh Bhadoria has the candidates profile for the first phase of Lok Sabha polls 2024. A group called the Association for Democratic Reforms analyzed 1,618 candidates running in the first phase of the Lok Sabha elections and has made some noteworthy observations. As many as 16%, equal to 252 candidates, have criminal cases against them, while 161 candidates, or around 10%, are facing serious charges. Additionally, 35 candidates are linked to hate speech incidents. There are as many as 18 candidates who are accused of crimes against women. They also found that 450 candidates, which is about 28%, are crorepati, with assets over rupees 1 crore each. On average, candidates have assets worth 4.51 crore. One candidate named Nakul Nath from Chhindwara has assets worth rupees 716 crores. While people have different criteria in mind when they choose their candidate to vote for, this report could help those considering these criteria. एक बार फिर से आइए अब चलें पूर्णिया हम चलते हैं और वहां से हमारे संवाददाता हैं धर्मेंद्र कुमार राय, वहां से जानते हैं ताजा गतिविधियों के बारे में। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट पर इस बार 22 लाख से अधिक मतदाता जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल सहित 7 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। एनडीए की ओर से जदयू ने अपने मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा को फिर से प्रत्याशी बनाया है, जबकि महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार सरकार की पूर्व मंत्री बीमा भारती चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने हाल में पार्टी नेतृत्व से मतभेद के बाद जदयू को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की थी। पूर्णिया लोकसभा चुनाव में सभी की नजरें महागठबंधन के बागी उम्मीदवार और यहां से 3 बार सांसद रह चुके राजेश रंजन और पप्पू यादव पर टिकी है। वे इस सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के टिकट की आस में उन्होंने हाल में अपने दल जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था, लेकिन यहां से वे अधिकृत उम्मीदवार बनने में विफल रहे। इसके बाद वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी अखाड़े में हैं। पूर्णिया संसदीय सीट का इतिहास देखें तो यह लंबे समय तक कांग्रेस के पास रही, लेकिन 1984 के बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। बाद के चुनाव में भाजपा ने 3 बार और जनता दल यूनाइटेड ने यह सीट 2 बार जीती है। पूर्णिया जिले के साथ इस संसदीय सीट का विस्तार कटिहार जिले में भी है। पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत कस्बा
बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कोढ़ा की विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल इसमें से 5 पर कब्जे के साथ एनडीए का प्रभुत्व है। सबसे अधिक 3 बार भाजपा ने यह सीट जीती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने 2 सीटें रुपौली और धमदाहा पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने कस्बा की 1 सीट जीती थी। मक्का उत्पादन के बड़े क्षेत्र पूर्णिया में खेती किसानी लोगों की आय का बड़ा जरिया है। यहाँ की गुलाब बाग अनाज मंडी पूरे सीमांचल क्षेत्र में व्यापार और व्यवसाय का बड़ा केंद्र है। बेरोजगारी, बुनियादी विकास का अभाव, गरीबी और पिछड़ापन इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनका दशकों बाद भी समाधान नहीं हो सका है। श्रोताओं, ये थे पूर्णिया से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय। हमने आपको 2 जानकारियां दी, एक पूर्णिया के बारे में विस्तृत जानकारी और दूसरा एडीआर की रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम संतोष जी आपसे एडीआर की जो रिपोर्ट ताज़ा आई है उस पर समझना चाहेंगे। दिलचस्प तथ्य निकलकर सामने आए हैं, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस रिपोर्ट पर? देखिए, एडीआर आपने देखा होगा कि हर चुनाव में और चुनाव के बाद भी उम्मीदवारों की प्रोफाइल के बारे में कि उम्मीदवारों की प्रोफाइलिंग क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी जानकारी उपलब्ध कराती है अपनी तरफ से एक डिटेल्स के साथ जो है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने भी अलग से इसके लिए एक व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए अलग से एक ऐप बना रखा है कि कोई भी मतदाता अपने उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी वहाँ से उसका जो पूरा एफिडेविट है वो देख सकता है। इवन उसकी जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग है उसको भी देख सकता है। और एक जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था इस बार जो की गई है वो ये है चुनाव आयोग की ओर से, वो कि जितने आप अगर मान लीजिए किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक केसेस हैं तो आपको वहाँ स्थानीय 2 चैनल्स में भी जाके आपको बताना पड़ेगा, रिवील करना होगा, बताना होगा कि हाँ भाई मेरे खिलाफ ये आपराधिक मुकदमे हैं। तो एडीआर की जो रिपोर्ट है वो निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि मतदाताओं के लिए एक जागरूकता करने वाली चीज़ है कि हमें कैसे प्रत्याशी चुनने हैं, किस प्रत्याशी को हमें वोट देना है, उसके बारे में एक पूरी जानकारी उनको मिल जाती है। यहाँ पर हम पूर्णिया एक बार अब फिर आपको लिए चलेंगे संतोष जी। विस्तृत जानकारी हमारे धर्मेंद्र जी ने वहाँ से भेजी है, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? कैसे आसार लग रहे हैं, जो वहाँ की रणनीतिक स्थितियाँ दिख रही हैं चुनाव को लेकर? देखिए, बिहार को लेकर के मैं पहले भी बोल चुका हूँ। बिहार में जो पूरा चुनाव जो होता है, चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के, उसमें कास्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि इस बार चूंकि उन्होंने पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था, जन अधिकार पार्टी का, कि हमको पूर्णिया सीट मिल जाएगी कांग्रेस के साथ, लेकिन वो सीटें नहीं मिली और वो उन्होंने निर्दलीय वहाँ पे खड़े हुए और निश्चित तौर से मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो गया है वहाँ पे, क्योंकि पप्पू यादव की भी छवि एक अपने आप में अलग तरह की छवि है। लेकिन बहुतायत आपने देखा होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार वोट तो काट लेते हैं लेकिन जीत की ओर जा पाना थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए इसमें नुकसान किसका होगा वो अब समय बताएगा जी। And we now go over to the constituency profile of Jaipur, Rajasthan. A total of 17 Lok Sabha elections, including one by-election, have been held in Jaipur Lok Sabha seat so far. Out of these, Congress has won 4 times, BJP 7 times, Swatantra Party 3 times, while independent and other party candidates have won thrice. BJP's Girdhai Lal Bhargav won this seat 6 consecutive times from 1989 to 2004. In the 2009 Lok Sabha elections, Mahesh Joshi of Congress won this seat by defeating senior BJP leader Ghanshyam Tiwari. After that, in 2014 and 2019, BJP's Ramcharan Bohra represented this seat by big margin wins. This time, a total of 13 candidates, including BJP, Congress and BSP, are in the fray. BJP has fielded Manju Sharma as its candidate, who is the daughter of former senior BJP leader Bhawan Lal Sharma. Her main contest is believed to be from Pratap Singh Khacharyavas of Congress. Khacharyavas has been a cabinet minister in the state government but faced defeat in the recent assembly elections. It will be interesting to see whether Congress succeeds in stopping BJP from scrolling a hat trick of victories in this election. That was Jitendra Dwivedi, our correspondent from Jaipur. And now from the Pink City, we go over to the neighboring state of Madhya Pradesh, Tikamgarh, where Sanjeev Sharma. अयोध्या कही जाने वाली ओरछा के लिए देश भर में लोकप्रिय टीकमगढ़ सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
2009 से यहां भाजपा का कब्जा है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में 3 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। टीकमगढ़ सीट से इस बार कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को चौथी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे पंकज अहिरवार को चुनाव मैदान में उतारा है। इस चुनाव में 18 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2077 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2019 के चुनाव में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कांग्रेस की किरण सिंह अहिरवार को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया था। That was our correspondent Sanjeev Sharma from Tikamgarh. संतोष जी, जयपुर और टीकमगढ़ दोनों की कुंडली तो नहीं कहूंगा, लेकिन उम्मीदवारों की जो ताजा स्थिति है उसके बारे में और इतिहास रहा है, थोड़ी सी जानकारी हमें मिल गई। क्या आसार लग रहा है? देखिए, जयपुर का इतिहास तो आपको मालूम है कि अधिकांशतः उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और बहुत सेफ सीट, सुरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाती रही है। वो सीट जो उन्होंने बताया, गिधाईलाल भार्गव खुद 6 बार वहाँ से सांसद रहे और बहुत ही कहते हैं उसको कि डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। तो जयपुर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मंजू शर्मा है, भंवरलाल शर्मा के परिवार से हैं और जो बीजेपी के बड़े नेता। दूसरे जो उनके सामने प्रताप सिंह खाचरियावास की बात कर रहे हैं, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये जो अपने उपराष्ट्रपति रहे हैं भैरव सिंह शेखावत, उनके परिवार से हैं, शायद उनके भतीजे हैं वो। और वो भाजपा में पहले उस लेगेसी को बढ़ाना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वहाँ उनको मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिली तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, मंत्री भी बने और इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। तो मुकाबला करने की कोशिश तो होगी, लेकिन जो राजस्थान की स्थिति है और राजस्थान को आप पिछले 2014 और 2019 आप देखेंगे तो 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतती रही हैं। और इस बार चूंकि चुनाव की स्थिति को अगर आप देखें देश के अंदर, पूरे देश की, मैं सिर्फ जयपुर की नहीं पूरे देश की अगर बात करूं, तो पूरा चुनाव मोदी बनाम अदर्स, यानी आपने जो चर्चा की थी मनोवैज्ञानिक हो चुका है, उसी दिशा में हम जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। And now we have our correspondent Shiva Kumar from RNU Puducherry with us. Shiva, can you please tell us in Puducherry what special measures the Election Commission has put in place for the Lok Sabha polls? Yes, sir. I will unfold the special measures. In the spirit of sustainable and green elections, the Office of Chief Electoral Officer Puducherry has launched the Count the Carbon campaign. As an outreach program, this campaign involves with the scientific assessment of election processes in a holistic manner. The CEO informed that this initiative is intended as a first step towards a carbon neutral elections in the near future. The election department is taking several activities such as reuse of materials, reducing the printing, rationalization of vehicle usage, reduce reliance on traditional sweep methods such as printing banners, fluxes, etc., to reduce carbon footprint in the election process. Both Chief Electoral Officer Mr. Jawahar and District Election Officer Mr. Klothangan are encouraging the youths to vote with their friends and families. They appealed them to walk to vote and opt for vehicle pooling. A logo designed exclusively for walk to vote is made popular among the voters. A sample survey would be employed on poll day to concretely identify the numbers of voters who have walked to vote. CEO informed that if all 10,23,000 voters in the UT walked to vote, 40 tons to 180 tons of carbon dioxide equivalent emission. Thank you, Shiva Kumar ji, for that wonderful update. Thank you very much indeed. आइए अब चलें शिलोंग। हमारे मेघालय संवाददाता परितोष जी फुल लाइन पर हैं। स्वागत है परितोष आपका। क्या आसार हैं वहां के शिलोंग के बारे में? क्या सब तैयारियां चल रही हैं? क्या ताजा स्थिति है? कि यहाँ पर सभी राजनीतिक दल अपने नुक्कड़ सभाएं और घर घर जाकर जनसंपर्क पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और राजनीतिक दलों को अपने महिला उम्मीदवारों पर विशेष निगाह टिकी हुई है। यहाँ मात्र सत्तात्मक समाज होने के कारण पार्टियों को लगता है कि हमारे जो महिला उम्मीदवार हैं वो चुनाव आसानी से निकाल ले जाएंगे। इसके अलावा अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के किसी बड़े राजनेता की यहाँ कोई भी बैठक, कोई बड़ी सभा नहीं हुई है, तो उम्मीदवार भी अपने स्तर पर नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क घर घर जाकर कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ परितोष फोन लाइन पर थे मेघालय से, शिलोंग से। जी बिल्कुल मनोज जी एंड संतोष जी, वन वेरी इंटरेस्टिंग facet of our reporters update from Puducherry was the sustainable and green campaign. You were talking about how the Election Commission of India is working on various fronts to make the elections the real festival of democracy. So this is something which is really should be welcome, because the election in Pondicherry, which always sees very high numbers of turnout, they are talking about something like carbon neutral elections. देखिए, अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों से इस देश के अंदर ये जो कार्बन न्यूट्रल वाली जो बातचीत चल रही है, आपने वो भी ग्रीन इलेक्शन ग्लासगो और जो जितने भी समिट्स हुए हैं, COP 26, 27, 28 की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार जो देश का चुनाव है ऑलमोस्ट पेपरलेस चुनाव होने जा रहा है। और इसका जो मैंने कहा कि चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि एक ऐसा फुटप्रिंट भारत अपने चुनाव के जरिए, क्योंकि मैंने कहा ना दुनिया का सबसे बड़ा ये एक्सरसाइज होने जा रहा है इस बार, जो मुझे लगता है एक कहीं मैंने शायद विदेश मंत्री एस जयशंकर का कमेंट देखा था कि प्लानिट का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली चुनाव में ग्रीन चुनाव हो, जैसे आपने देखा बिल्डिंग्स हो या बाकी चीज़ बनाने के लिए भी जो सरकार की ओर से ये चीज़ें पहल होती हैं, तो चुनाव आयोग भी जो राष्ट्र की धारा है उसको इस प्रक्रिया में शामिल करना चाह रही है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण यानी आपसे प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनकी ओर से कहा गया कि इस बार चुनाव में अपनी साख बढ़ाना, विश्वसनीयता बहाल करना भी उद्देश्य है। तो इन तकनीकों का जितना इस्तेमाल हो रहा है, लग रहा है कि इन तकनीक के इस्तेमाल से जो विशाल ग्रामीण आबादी है जो तकनीक से परिचित नहीं है, उनके बीच भी साख बनेगी निर्वाचन आयोग की। निश्चित तौर से देखिए, आज के समय में ये कहना कि ग्रामीण आबादी में नहीं है, आज डेटा की खपत अगर आप देखेंगे तो शहरों से ज्यादा गाँव में डेटा की खपत हो रही है। जी। तो गांव में टेक्नोलॉजी पहुंची है, लोग अवेयर हैं, और इस समय जो देश का जो आम चुनाव है वो अपने आप में एक विशेष इसलिए बन रहा है क्योंकि देश ने एक संकल्प लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा किसी पार्टी का संकल्प है, ये राष्ट्र का संकल्प है। चाहे वो ठीक है, इस समय जो मौजूदा सरकार है उन्होंने उस नारे को आगे बढ़ाया है, लेकिन विकसित भारत का जो संकल्प है उसका सारथी हर कोई बनना चाह रहा है, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे युवा हो, चाहे शहरी हो, चाहे वो सुदूर इलाके में बसे आदिवासी हो। जी, वो चाहते हैं कि भारत विकसित बने और आत्मनिर्भर बने। तो उस दिशा में निश्चित तौर से जो चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने की जो बात आप कर रहे हैं, आपको याद होगा जब अभी G20 के बाद P20 एक मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने भी सारे देश के नेताओं को कहा था कि उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे 100 करोड़ मतदाता इसमें भाग लेने जा रहे हैं और आप आइए और हमारे लोकतंत्र के उत्सव में, लोकतंत्र के महोत्सव को आप देखने के लिए पहुंचिए। तो निश्चित तौर से जब भारत इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बोल रहा है, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता निश्चित तौर से बढ़ेगी। जी।